Good morning, students. In chapter number 8, Introduction to Trigonometry, our today's topic is trigonometric identities. How to derive trigonometric identities, which we have to study today, and we have to use this concept in our exercise 8.4 as well as in your further classes also. Okay. In this chapter 8, we have yet studied that how to find out trigonometric ratios for complementary angles as well as how to derive values of all the trigonometric ratios for specific angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 as well as 90 degree. Okay. Now proceeding further in this topic, to derive trigonometric identities, we have to make a right angle triangle. I have made a right angle triangle ABC, right angle at B. Okay. Let angle C as theta. आपने angle C को theta ले लिया. If angle C is theta degree, then side opposite to theta is perpendicular. Side adjacent to theta is base, and hypotenuse is the longest side which is opposite to right angle. आप सभी को पता है ना? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस होगी. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे in triangle ABC, if we will apply Pythagoras theorem, then we will get AB square plus BC square is equal to AC square. Am I right? Perpendicular square plus base square is equal to AC square. Now see, we will divide this equation number 1 by AC square. एक बार मैं इसको AC square से डिवाइड कर रही हूँ, दूसरी बार मैं इसको AB square से डिवाइड करूँगी और तीसरी बार मैं इसको BC square से डिवाइड करूँगी. In this manner, we will get 3 different trigonometric identities. Okay. So first of all, we will divide equation first by AC square. Divide equation first by AC square. So we'll get AB square upon AC square plus BC square upon AC square equals to AC square upon AC square. Okay. Now check it out. Can we write AB square upon AC square as AB upon AC whole square? हम यहाँ लिखेंगे इसको AB upon AC whole square. In the same way, BC square upon AC square can be written as BC upon AC whole square. And what about right side? Can we cancel it out? AC square से कट गया, ये आ गया 1. Now see, AB upon AC, can we replace AB upon AC by any of the trigonometric ratio? क्या हम इन साइड्स के रेशियो को किसी trigonometric रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ देखिए in triangle ABC, if I will work, I need to find out sin theta. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? For theta, which side is perpendicular? AB is perpendicular and hypotenuse is AC. देखिए इक्वेशन में AB upon AC can be replaced by sin theta. Okay, moving further, cos theta निकालिए. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is BC and hypotenuse is AC. कुछ आया दिमाग में, क्लिक किया कुछ? Can we replace AB upon AC by sin theta? Here, वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे. तो AB upon AC can be replaced by sin theta. स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC अपॉन AC. BC अपॉन AC कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो फ्रॉम हियर वी गॉट आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, sin थीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इन दोनों की वैल्यूज को आप सम अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1. थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल, दैट मींस एंगल मस्ट बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. आया समझ में ये? अब देखिए ये तो होगी मेन आइडेंटिटी, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, लेट इट बी A. ठीक है. अब यहाँ से हम दो और आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं. अब मुझे निकालनी है, यहाँ से मुझे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो कैन बी राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. और अगर मैं बोलूँ नहीं आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो ये दो आइडेंटिटीज आपको और मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट आइडेंटिटी.
आइए बात समझ, बिल्कुल सिंपल है। अगर एग्जाम में आए कि प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC को आपकी मर्जी, आप जो भी नाम ले रहे हैं, लेबल दिस एंगल एज थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा एज यू विश। पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उस पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन को आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली जो आपको मिल जाएगी यहाँ से। AB अपॉन AC किसके इक्वल है, sin थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने AB अपॉन AC को रिप्लेस कर दिया sin थीटा से, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। वैसे ही BC अपॉन AC को रिप्लेस कर दिया आपने cos थीटा से, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी देयर होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दिया, या अगर आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपने sin स्क्वायर थीटा को वहां शिफ्ट कर दिया। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब मैं बोलूं ये होगी फर्स्ट आइडेंटिटी दे रही। अब इसके बाद आपको सेकंड आइडेंटिटी पे लेके चलते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी के लिए दो मेथड है आपके पास, वी हैव टू मेथड्स। एक तो ये कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय, आपने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब आप डिवाइड कर दो AB स्क्वायर से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, तो आ गया AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट को आपने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस बार अब सॉल्व करो, ये तो कट रहा है, तो आ गया 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को आप BC अपॉन AB होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने किया BC अपॉन AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AB होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर था, आपने दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये स्क्वायर से स्क्वायर काट कर देना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए कि हम BC अपॉन AB को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही AC अपॉन AB को आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ ये ट्रायंगल में वापस से BC अपॉन AB, BC is base and AB is perpendicular, so we know that cot थीटा, ये काम करके सारे रेशियोज निकाल लेते हैं। sin थीटा आपने निकाल लिया, cos थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकाल लो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, perpendicular अपॉन base, perpendicular is AB अपॉन base is BC। after getting all these three इनके रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। हाथ क्या है यहाँ पे, मैं यही लिख रही हूँ साथ साथ में, cosec थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AB। डायरेक्टली आई हैव रिटन cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो आ गया AC अपॉन AB। sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो ये मिल गया AC अपॉन BC। एंड cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, BC अपॉन AB। अब देखिए, अब वैल्यूज देखिए, 1 will remain as it is प्लस BC अपॉन AB, चेक करो BC अपॉन AB किसके इक्वल है, cot थीटा के इक्वल है। तो आपने क्या कर दिया, cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB किसके इक्वल है, cosec थीटा के। इसको आपने रिप्लेस कर दिया cosec थीटा होल स्क्वायर, तो ये मिल गया 1 प्लस cot थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, cosec स्क्वायर थीटा। सो आवर सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से दो आइडेंटिटीज और डेराइव कीजिए, तो क्या क्या आइडेंटिटीज आएंगी, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो आपको cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। या फिर एक आइडेंटिटी और क्या बनती है, cosec स्क्वायर थीटा, इस cot स्क्वायर थीटा को यहां ले जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आपके पास जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और नहीं मिली, वैसे ही इस आइडेंटिटी से भी आपको दो नई आइडेंटिटी मिलती है। एक तो आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी इज cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको वहां शिफ्ट कर दिया। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी। एंड फॉर थर्ड आइडेंटिटी वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको डिराइव करने के फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे डिराइव करनी है आपको, फर्स्ट यू डिराइव इन दिस मैनर ओनली।
जो ये इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, LHS एज वेल एज RHS। अगर आप AB स्क्वायर से डिवाइड करना नहीं चाहते तब आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया डिवाइड, ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया। अब चेक कर लो, आ जाएगा आंसर। इट विल बी कैंसल्ड आउट। 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। याद करो कोशेंट रिलेशनशिप, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। दोनों पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। देखिए क्या सेम आइडेंटिटी आ गई है ना। तो ये भी एक तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर आ जाए एग्जाम में कि डेराइव cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो अगर आपको इस मेथड पे जाना है तो इसके लिए आपको पहले ये आइडेंटिटी डेराइव करनी पड़ेगी, फिर sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको करना कि नहीं हम ये क्यों डेराइव करेंगे, डायरेक्टली कोई डेराइव करेंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद आपने क्या किया, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AB मतलब देखो मैंने यहाँ पे AB लिखा, ये नहीं हर बार AB लिख दो। आप ट्रायंगल ले लो PQ और डिवाइड करो AB से, मैम ने ये भी बताया था। आपको देखना क्या है, डिवाइड किससे करना है, आपको परपेंडिकुलर साइड से। जो परपेंडिकुलर साइड है उससे डिवाइड करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी आएगी, और अगर बेस से डिवाइड करोगे तो थर्ड आइडेंटिटी आएगी जो अब मैं डेराइव करना आपको बताऊंगी, ठीक है ना। और अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो आ जाएगी फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ फॉर थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर। इस बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब एंगल थीटा के लिए बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर, तो व्हाट वी विल गेट, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। Now solve it in the same manner as we did in previous identities. Can we write AB square upon BC square as AB upon BC whole square plus BC square upon BC square cancel out, 1 बचेगा और ये आ गया AC upon BC whole square। अब वही सेम कंसेप्ट, अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए हुए हैं। अब मैच कीजिए, AB upon BC can be replaced by tan theta। So here AB upon BC we have replaced by tan theta whole square plus 1 will remain as it is, AC upon BC, AC upon BC will be replaced by sec theta equals to sec theta whole square। So here we have our third identity, that is tan square theta plus 1 equals to sec square theta, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये की बात है। और यहाँ से दो और आइडेंटिटीज अगर आप डेराइव करते हैं तो वो आपको क्या मिलती है, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को अगर आप राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड वन मोर आइडेंटिटी यू विल गेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस बार tan स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट किया तो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हमने सारी आइडेंटिटीज डेराइव करी। और एक मेथड और है जिससे हम डेराइव करेंगे, जिसे मैंने प्रीवियसली बताया कि जो आपने ये A वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी डेराइव करी है उसको अगर आपने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो आपको मिली आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर इसी आइडेंटिटी को हम डिवाइड करें cos स्क्वायर थीटा से तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, LHS एज वेल एज RHS को आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, इट इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो ये लग गया tan स्क्वायर थीटा प्लस इट इज कैंसल्ड आउट 1 equals to 1 upon cos theta is equal to sec theta and 1 upon cos square theta is equal to sec square theta। तो यहाँ से भी ये आइडेंटिटी डेराइव हो सकती है। So in this manner we have derived all the three identities। हमने डेराइव कर ली 10th क्लास। अब इनको लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको खुद को लर्न करनी है। प्लीज इनको लर्न कीजिए
अगली एक्सरसाइज 8.4 में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसमें आपको सारी आइडेंटिटी, अब देखो सारी आइडेंटिटीज मतलब कि 3 आइडेंटिटी डेराइव करी है और साथ में दो वैल्यू दो आपने और बना दिए हैं, यानी टोटल 9 आइडेंटिटीज ये हो गई। इसके अलावा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप cos x थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। उसके अलावा कोशेंट रिलेशनशिप tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज अब आपके 8.4 एक्सरसाइज में काम आने वाली है। 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, बिल्कुल बेसिक चीजें थी ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन 8.4 में कुछ चीजें आप ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हो इतना बहुत ही इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपको जो अगली एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़नी है उसमें सारी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, तो प्लीज इनको लर्न कर लीजिए, तभी आप इजीली उस चीज को समझ पाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ओके, सो प्लीज रिवाइज ऑल द आइडेंटिटीज और इस टॉपिक को भी आप रिवाइज कीजिएगा। In next class we will meet with exercise 8.4 and some of the examples.